بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اور خیریت سے ہیں آپ سب؟ چلیے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو کل ہم نے کیا کرا تھا؟ چلیے آپ کی ریویژن ہو گئی۔ کل ہم نے کیا کرا تھا؟ تو چلیے میں ایک بار آپ کی ریویژن کرا دیتی ہوں۔ الف لام میم، یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقاطعات ہیں۔ ذالکا، ذالکا وہ، دور کا اشارہ۔ کیا بتایا تھا آپ کو؟ کل میں نے آپ کو بہت ڈیپلی اس کا بتا دیا تھا، بہت دور کا اشارہ ہے نا۔ الکتاب، کتاب جو کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی کتاب۔ لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ کل میں نے آپ کو بہت بتا دیا تھا متقین کے تک کا۔ تو کون ہوتے ہیں متقی؟ جو بچ بچ کے نکلتے ہیں، ہے نا، جو تقوی پر رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ، جو اگر انہیں اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے دیں وہ اس کو بالکل فالو کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کو بالکل مطلب ان کی ایک ایک چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا۔ جو جو بالکل ایک دم کانشیس انسان ہوتے ہیں، انہیں وہ ہوتے ہیں متقی، جو ہدایت پر ہو اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی ایسے جیے، اپنی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کر جو جیتے ہیں، جو یہ نہیں کہ مطلب ابھی ہم متقی ہیں، ابھی ہم ذرا سی ہمارے اوپر ذرا سی ہمارے اوپر پریشانی آ جائے، ذرا سا ہمارے اوپر کوئی دکھ ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو ہمارا لیول بالکل ہٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہیں ہوتے۔ کون ہوتے ہیں؟ جو کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی کوئی بھی ان کو پریشانی آ جائے، وہ اپنی وہ اپنی ہدایت پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مطلب جو بالکل کانشیس ہو کر جیے، وہ ہوتا ہے متقی، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس کے لیے؟ جو جو ہدایت کے لیے تڑپ رہا ہو اس کے لیے ہدایت ہو، جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہو اس کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت کو مطلب جو ہدایت پانے کی طلب کرے اس کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہو، جو مانگ رہا ہو، جو بے چین ہو رہا ہو ہدایت مانگنے کے لیے، تڑپ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی طلب کر رہا ہو، اس کے لیے یہ ہدایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے ہدایت نہیں ملتی ہے کہ اگر مجھے ہدایت ملے گی تو میں یہ کام کروں گی، تو ورنہ نہیں ملے گی تو نہیں کروں گی۔ اگر ہدایت ملے گی تو میں پردہ کروں گی، ہدایت ملے گی تو میں کوئی وہ اچھا کام کروں گی، ہدایت نہیں ملے گی تو میں نہیں کروں گی، ہدایت ملے گی تو میں نماز پڑھوں گی، ہدایت نہیں ملے گی تو میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ نہیں نہیں، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت طلب کرنی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے، بار بار مانگنی پڑتی ہے ہدایت، ٹھیک ہے۔ اور جو ہدایت کو مانگے، اس کو پکڑے رکھے، اس کو جکڑے رہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے متقی انسان۔ چلیے اب ہم کیا پڑھیں گے؟ الذین۔ اچھا الذین کیا ہے یہ؟ الذین کس کو کہتے ہیں؟ الذین کون ہوتا ہے؟ اب جیسے کہ الذین بیسیکلی جب شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، اور یہ شروع میں ہی آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب بھی الذین آئے تو اس کا کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیچھے سے ہوتا ہے، یعنی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، پیچھے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے، اس لیے الذین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے لیے کیا آتا ہے؟ الذین،
ठीक है, अल्लजीना लगाते हैं। और अगर एक आया सिंगुलर आया तो उसके लिए क्या आता है, अल्लजी लगाते हैं। ठीक है, यानी वो लोग जो ऐसे वो लोग जो, ठीक है, जो या जो ऐसे होगा, कैसे होगा, जो अ, ठीक है। मान लो मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, अब मैं बात आगे पीछे कुछ नहीं की, है ना, और मैं कहूँ वो लोग जो, आपको कुछ समझ में आएगा मेरी बात, नहीं आएगी मेरी बात समझ में। लेकिन मैं पीछे से कहूँ, पीछे से कोई बात करूंगी, और वो लोग जो मेहनत करते हैं, या ऐसे लोग जो यहाँ पर आए वो मेहनत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो जो लगाऊं, तब आपकी समझ में आएगी। ठीक है। तो अल लजीना कहते हैं, अरबी में मौसूला होता है। चलिए, इस पर हम ज्यादा गौर मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको ये लफ्ज बताती हूँ ताकि आपके कानों में ये लफ्ज बार बार पड़े। बेशक आप याद मत करिए, क्योंकि जब कोई अल्फाज बार बार आपके कानों में पड़ेगा तो एक ना एक दिन आपको वो याद हो ही जाएगा, चाहे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, है ना। कभी भी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसको घबराइए मत, इस पर गौर मत कीजिए। बस मैं आपको बता रही हूँ, बस आप इतना याद रखिए कि अल लजीना का मतलब पीछे से बात हो रही है। तो वो जो युमिनूना, युमिनूना क्या है, ये फेले मुदारे है। आमना युमिनू से बना है। ठीक है, शुरू में या आ गया और आखिर में वाव नून भी आ गया। ठीक है, जैसे कि तो इसकी पहचान क्या हो गई, शुरू में ये रहा, शुरू में क्या आ गया, शुरू में या, और आखिर में क्या आ गया, वाव नून। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई। ठीक है। तो आ मना यू मीनू से बना है। तो और इसके और मैंने ये अलामत मैंने याद रखने के लिए कहा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, युमिनूना, वो सब ईमान लाते हैं या लाएंगे। और इसके रूट लेटर क्या है, हमजा मीम नून, या अलिफ नून, अलिफ मीम नून भी आता है। ठीक है, तो अल्लजीना वो लोग जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब। अच्छा, बी का मतलब क्या है, पर, गैब मतलब छुपी हुई बातों पर। ठीक है, वाव, वाव का मतलब होता है और। अ, ठीक है, युकीमूना, अकामा से युकीमू से बना, युकीमू बना है। ठीक है, अकामा से युकीमू, ये और युकीमुना क्या है, ये भी फेले मुतारे है। ठीक है, शुरू में इसमें या और आखिर में वाव नून आ गया, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो क्या है इसकी पहचान, युकीमुना, शुरू में या और आखिर में वाव नून, वाव नून इसकी पहचान है। ठीक है। और इसके रूल लेटर क्या है, काफ वाव मीम। तो वो सब कायम करते हैं, इस्टेब्लिश करना, कायम करना, वो सब कायम करते हैं अस्सलात, नमाज। ठीक है, सलात किसको कहते हैं, नमाज को, ठीक है। तो वमिम माँ, माँ किससे जुड़कर बना है, मिन प्लस माँ, माँ से। तो मिन, मिन का मतलब होता है से, और माँ का मतलब होता है जो। ठीक है, तो इन दोनों से जुड़कर क्या बन गया, मिम्मा, इसमें से जो, रज़क़ना हूँ, हमने रिस्क दिया उनको। अच्छा, अब अब तो आपको ये पहचान हो ही गई होगी ना, ये क्या है, रज़क़ना, रज़क़ना ना। तो इसकी पहचान तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हो गई होगी, ये क्या है, ये पहले माजी है, तो हमने रिस्क दिया, रज़क़ना। ठीक है, तो अगर अगर हमें इसकी कोई पहचान याद ना आए ना, मतलब हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम फटाफट ना फाला फालू की गर्दान पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि
फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, फ़अलना। और ये क्या है? रज़क़ना। तो ये क्या है? मिलता जुलता है ना, किसके पैटर्न पे लग रहा है? फ़अलना। ठीक है, किसका भाई लग रहा है? रज़क़ना। तो क्या है ये? हमने रिस्क दिया। और आगे क्या गया? हम, उन सबको, युनफिकून, वो सब खर्च करते हैं। अनफका, युनफिकून से बना है। युनफिकून ये भी क्या है? पहले मुदारे है। युनफिकून, शुरू में या और आखिर में वाव नून। तो वो सब खर्च करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, पहले बात समझे, फिर हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके आपके याद हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लजीना, मैंने मैंने आपको क्या बताया था कि अल्लजीना का मतलब बात पीछे से कनेक्ट है। पीछे से हमने क्या पढ़ा था? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ठीक है, अब अल्लाह ताला आगे ये बता रहे हैं कि मुत्तकी लोग कौन कौन होते हैं, ये हमें क्या क्या करना है। ठीक है, कि कौन है या हमें क्या क्या करना है मुत्तकी बनने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया कि मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह आगे ये बता दिया कि मुत्तकी बनना है तो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहली शर्त क्या है मुत्तकी बनने की? अगर तुम्हें अल्लाह ताला के करीब पहुंचना है, तुम्हें कामयाब होना है, जन्नत तक पहुंचना है, तो तुम्हें क्या क्या करना है शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, ताकि शैतान जो है ना हर वक्त तुम्हारे जो पीछे पड़ा हुआ है ना। हम हम कुरान खोलें, जैसे ही पहला पेज पढ़े तो हमारी समझ में आ जाए कि नहीं नहीं, हमें तो शैतान की बात नहीं माननी, अल्लाह ताला ने तो मुझे मुत्तकी बनने के लिए सारी बात बता दी। अब मुझे इस पर फोकस रखना है, अब मुझे उसी पर ध्यान देना है। अब जैसे पहली बात क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनके अंदर उनके अंदर पहली सिफत ये होती है जो गैब पर ईमान लाते हैं। और गैब किसे कहते हैं? छुपी हुई बातों पर। अच्छा, जो लोग छुपी हुई बातों पर ईमान लाते हैं, और जैसे कि छुपी हुई बातें कौन कौन सी हो गई, कौन होती है? जैसे कि जन्नत हो गई, दोजख हो गई, और जैसे कि फरिश्ते हो गए, अल्लाह ताला हो गए, और या ये बाकी की किताबें हो गई, रसूल हो गए, तमाम बाकी के रसूल हो गए, कयामत का जिक्र हो गए, ये सब किसकी बातें हो गई? ये सब छुपी हुई बातें हो गई। और हमारा इन पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। जब तक इन सब चीजों पर ईमान नहीं लाएंगे तब तक जो है हम मुत्तकी नहीं बन सकते, मुत्तकी की कैटेगरी में हम नहीं आ सकते। और मुत्तकी हो गई छुपी हुई बातें, इन पर ईमान लाना जरूरी है। और इसके अलावा जैसे कि एक हदीस में आता है कि इब्ने कसीर की हदीस में एक आता है कि हुजूर के साथ 2-3 सहाबा बैठे थे, तो उन्होंने सहाबाओं ने बात क्या कहा रसूल अल्लाह से कि रसूल अल्लाह, हमसे बेहतर कोई और उम्मत होगी, हमसे बेहतर कोई इंसान होगा जो जो मतलब जिन्होंने, हमने आपको देखा है, आपके साथ नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और हमने आपके साथ जिहाद किया है, क्या हमसे भी बेहतर कोई होगा? तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा? हाँ, वो लोग जिन्होंने मुझे देखा भी ना होगा और वो मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? जैसे कि हम हो गए और लोग हो गए, क्योंकि हमने रसूल अल्लाह को देखा भी नहीं है, और ये एक अनदेखी बातें हैं, लेकिन जो है ना हम इन पर यकीन करते हैं, और ये गैब में आता है। तो वो लोग जो गैब पर ईमान लाए, छुपी हुई बातों पर ईमान लाए, तो एक जैसे कि जन्नत हो गया, दोजख हो गई, है ना, और बाकी की जो भी चीजें, यानी एक होती है हमारे सामने देखी दुनिया, और एक होती है अनदेखी दुनिया, है ना। तो जो अनदेखी दुनिया को जो हम मानते हैं वो हो गए, और वो हो गया गैब पर ईमान लाना। और गैब पर ईमान लाने के बाद क्या आता है सेकंड नंबर पर? वयुकीमुन सलाता, वो सब कायम करते हैं नमाज। कायम करना किसे कहते हैं?
इस्टेब्लिश करना, कायम करना, अकामा युकीमू से बना है, ठीक है, अकामा युकीमू, वो सब कायम करते हैं नमाज। और नमाज क्यों कायम की जाती है? कोई अगर मुझसे ये कोई आपसे पूछे, या मान लो कोई आपका बच्चा भी आपसे पूछे, या कोई गैर मुस्लिम भी आपसे पूछे कि भैया आप नमाज क्यों पढ़ते हो, तो क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब दोगे? कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? बस कि ये हमारे दीन का हिस्सा है, इसलिए? क्या यही जवाब है इसका? है? नहीं नहीं, हम नमाज अल्लाह ताला ने कुरान में ही बता दिया। इसके आगे जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आएगा व अकीमिस सलाती मिन जिक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। नमाज जरूरी है अल्लाह ताला को याद रखने के लिए। जब लोग अल्लाह ताला को याद रखेंगे और वो कुरान को याद रखेंगे, अल्लाह ताला को याद रखेंगे, अल्लाह ताला की बातों को याद रखेंगे, तो वो जो है वो फिर सीधे सीधे रहेंगे। एक जगह कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज के बारे में, क्या? इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई कल वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे काम से रोकती है। और दूसरा फायदा क्या है नमाज कायम करने का? कि हम जो है बेहयाई से रुक जाए और हम बुरे कामों से रुक जाए, इसलिए नमाज कायम करना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए कि नमाज कैसे रोकेगी बुरे कामों से? जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक लड़का मस्जिद जा रहा है, ठीक है, कोई मस्जिद जा रहा है, और वो मतलब रास्ते में बहुत गालियां बकता हुआ जा रहा है और बहुत लड़ता हुआ जा रहा है, और क्या कह रहा है, रुक जा अभी मैं आता हूँ नमाज पढ़ के, अभी मैं बताता हूँ तुझे, ठीक है। और उसने नमाज पढ़ी और वो वापस आया, उसने अपनी लड़ाई कंटिन्यू कर दी, वो अपना दोबारा उसने लड़ाई शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे कि नमाज तो पूरे काम से रोक नहीं रही। अब देखिए नमाज में सबसे ज्यादा क्या होता है? क़याम होता है, और क़याम में हम कुरान पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और कुरान में हम अल्लाह ताला की बातें करते हैं, है ना, अल्लाह ताला की बातें पढ़ते हैं। जब हमें वो बातें समझ में आ रही होंगी, जब हमें अल्लाह ताला का कुरान समझ में आ रहा होगा, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये बातें हमें समझ में आ रही होंगी, तो हम नमाज जब भी कायम करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगी, तो हम बाहर निकलेंगे मस्जिद से, है ना। और या हम नमाज पढ़कर उठेंगे तो हमारे दिल में क्या होगा? नहीं नहीं, मैंने तो अभी पढ़ा था कि झूठ बोलने वाले कामयाब नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैंने अभी पढ़ा था कि लड़ाई झगड़े नहीं करने, मैंने अभी पढ़ा था कि सुलह रहमी करनी है। तो एकदम से नमाज पढ़कर आई हूँ और अभी तो एकदम से उसके दिमाग में ये बात रिकॉर्ड होती चली जाएगी। तो ऐसे नमाज बुरे काम और बेहयाई से रोकती है कि वो इंसान खुद ही बुरे काम और बेहयाई से रुक जाएगा। लेकिन हम क्योंकि हम इस वजह से नहीं रुकते हैं कि हमें नमाज समझ में ही नहीं आ रही होती है ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें कुरान ही नहीं समझ में आ रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने इसलिए ही हमने ये कोर्स शुरू करा है, ताकि आपको जो है ना ये समझ में आए। अगर कोई कारी कोई किरत कर रहा है तो आपको समझ में आए कि इमाम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह खैर। लेकिन अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले पारे के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा इनकी किरत के वो क्या किरत कर रहे हैं। और फिर जो मजा आएगा, फिर जो आपको मजा आएगा, फिर जो हम बुरे कामों से और बेहयाई से रुकेंगे, फिर तो उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है। तो क्या करें? वयुकीमून सलाता, ठीक है, और वो सब कायम करते हैं नमाज। ठीक है। और नमाज से एक फायदा ये भी है, गैब, तो इसका ताल्लुक किससे है? मुत्तकी से। हुदन लिल मुत्तकीन, के मुत्तकी लोग कौन है? पहले जो गैब पर ईमान लाते हैं, फिर उसके बाद नमाज कायम हो गई होगी, ठीक है। पता है आपको कि गैब पर ईमान लाना बहुत मुश्किल है।
अगर हम जो है वो जन्नत को मान रहे हैं, जन्नत को ठीक है, जहन्नुम को मान रहे हैं, हम फरिश्तों को मान रहे हैं, हम जो है हम जो है चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम जो है हमारी जो है वो नजर अलग होगी, हमारी हमारी बसीरत वाली नजर होगी मोमिन की जो होगी ना। लेकिन मोमिन जब नमाज पढ़ता है ना, और जब नमाज में ये सब बातें करता है तो उसका ईमान ताजा होता है। तो गैब पर ईमान इसका ताजा होता है। और फिर नमाज पढ़कर जब हटता है तो 3-4 घंटे बाद जो है थोड़ा सा तकवे का लेवल कम होता चला जाता है। जैसे कि मान लो हम कुरान आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके तकवे का लेवल कुछ और होगा, और जबकि आप पढ़कर हटेंगे तब भी कुछ और होगा, और शाम तक आपका कम हो जाएगा। लेकिन जब आप जैसे जैसे नमाज पढ़ेंगे, जैसे आपका तकवे का लेवल कम होगा, वैसे ही दूसरी नमाज का टाइम आ गया, और आपने दूसरी नमाज पढ़ी, एकदम से फिर अल्लाह ताला याद आ गए, एकदम फिर कुरान की बात आपको याद आ गई, एकदम से फिर आप एकदम फ्रेश हो गए, आपका जो है गैब पर जो है वो ईमान आपका मजबूत हो गया। इसी तरह फिर असर का टाइम आ गया, फिर मगरिब का टाइम आ गया, और फिर ईशा का टाइम आ गया। तो इससे क्या होगा, गैब पर ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत होगा। कुरान में हम क्या बात कर रहे हैं, और इस पर और ज्यादा यकीन होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए 5 टाइम की नमाजें दी ताकि हम पांचों वक्त अल्लाह ताला को, पूरे दिन अल्लाह ताला को याद रखें इंसान। और फिर चलिए आगे है मिम्मा, उसमें से जो रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज्क दिया। रज़का यरजुकू से बना है, ठीक है, हमने उन्हें रिज्क दिया। युनफिकून, वो सब उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, खर्च की बात पहले आई, नमाज की बात। अब तुमने नमाज कायम कर ली, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। इसका इसकी असल क्या है, जैसे कि नमाज की हकीकत क्या थी, तकवा पैदा करना। नमाज से तकवा पैदा होता है जब हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, और इन्फाक इन्फाक मतलब खर्च करना। इन्फाक की असल क्या है, जो हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और दिया किसने, हमने, अल्लाह ताला ने। किसकी तरफ इशारा है, किसकी तरफ इशारा किया है यहाँ पर, हमने। और हम का मतलब ये नहीं कि नाउजुबिल्लाह के अल्लाह ताला बहुत सारे, नहीं नहीं, नॉर्मल आप देखें कि जिसकी बादशाहत होती है बहुत सारे, जिसकी बादशाहत बहुत बड़ी होती है, जैसे मान लें एक बादशाह है, ठीक है, तो आपने मूवी वगैरह में या सीरियल में देखा होगा कि बादशाह कैसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें ये हुक्म दिया। तो क्या मतलब बादशाह बहुत ज्यादा हो गए, नहीं नहीं, उनकी उनकी वो दिखाने के लिए है, मतलब उनकी रेपुटेशन अलग होती है, उनको वो उनकी बादशाही होती है, इसलिए उनका उनका ये अपना एक अपना अंदाज अंदाज होता है, हम वाला। और वैसे आपने देखा होगा कि आम इंसान भी बहुत से हम करके बात करते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने बादशाह, अल्लाह ताला तो बादशाहों के बादशाह है ना, बादशाहों से भी बढ़कर बादशाह है। अल्लाह ताला की तो बादशाह सब पर है। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक ये भी अंदाज है, हम वाला अंदाज। और अल्लाह ताला तो इस अंदाज में भी बात करते हैं कि मैंने, है ना, मैंने ये किया। और जब अल्लाह ताला इस अंदाज में बात करते हैं ना, मैंने कहा या मैंने किया, जब मैं का लफ्ज लगाते हैं तो कभी भी गौर कीजिएगा, मैं गौर कराऊंगी आपको जब आएगा, तो बहुत ज्यादा या तो मोहब्बत होती है या अल्लाह ताला की उस वक्त ये बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा होते हैं। उस वक्त जैसे कि मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें ये नहीं करना, तब मैं करके बात करती हूँ ना। कभी मुझे गुस्सा है कि मैंने तुमसे कहा था ना सही टाइम पर ज्वाइन करा करो, मैंने कहा था। तो कभी क्या होता है, तो मैं करके बात करती हूँ, ठीक है। तो वही अंदाज हम जैसे नॉर्मल रूटीन में अपने बच्चों से बात करते हैं ना, वही अंदाज कुरान का है, सुभान अल्लाह, ताकि कुरान हमें समझ में आए। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमने उन्हें रिस्क दिया, हमने,
ہم نے رزق دیا مطلب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ہم آ رہا ہے اور ہم آ رہا ہے، اور ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ سب، یعنی ان سب کو دیا. ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں. انفقا ينفقون سے، ٹھیک ہے، انفاق کے لیے آتا ہے. سرنگ، سرنگ کا لفظ، سرنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سرنگ میں کوئی ایک دفعہ کوئی داخل ہو جائے تو وہ اینڈ تک ہی نکلتا ہے. تو اگر ایک دفعہ کوئی خرچ کرنا شروع کر دے تو اس کا خرچ کہاں تک پہنچتا ہے، اس کا ثواب کہاں تک پہنچتا ہے، اس کا تو اندازہ بھی ہمیں بھی نہیں ہے. ہم نے کہاں تک اس کا خرچ ثواب اس کو لے جاتا ہے. اب اس میں دیکھو کہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہے نا. انسان جو ہے اس کے اندر ایک لالچ ہے، سب کے اندر ایک لالچ ہوتا ہے. مان لو اگر میں دیتی ہوں کسی کو تو کیا 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 نیت آ سکتی ہے کہ دیکھو میں نے اس کو دیا، میں نے اسے صدقہ بھی دیا، خیرات بھی دی، اور اس نے میرا کام ہی نہیں کیا. نہیں نہیں، آپ کسی کو بھی دیں یہ سوچ کر دیں کہ میرے مال میں اس کا بھی حق تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اب میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں بچا، میں نے اس کا حق اس کو دے دیا. اگر ہم یہ سوچ کر خرچ کریں گے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ہمارے اندر نہ کوئی مطلب لالچ، کچھ لالچ نہیں آئے گا. اور یہ بھی کہ ہمارے اندر یہ امید بھی نہیں آئے گی کہ اس کے بدلے میں ہم اس سے اپنا کوئی کام کروا لیں، یہ بھی امید نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی سوچے کہ ایکچولی میں مجھے دے کون رہا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، اس لیے میں دے رہی ہوں لوگوں کو. اور میں کس لیے دے رہی ہوں؟ میں اپنے فائدے کے لیے دے رہی ہوں. جیسے مان لیں کہ میرے دو اکاؤنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایک اکاؤنٹ ایک دوسرے میں، ٹھیک ہے. تو اپنے ایک اکاؤنٹ میں سے میں پیسے نکال کر اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال دوں تو کیا کوئی مجھے یہ کہے گا کہ دیکھو دیکھو کتنی بے وقوف ہے، اپنے ایک اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کر اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے؟ نہیں کہے گا نا. اور اگر میں ایسا کر رہی ہوں تو کیا میرے مال میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ مال تو میرا ہی ہے نا. ایک تو اکاؤنٹ ہمارا یہاں پر ہے اور دنیا میں، اور ایک اکاؤنٹ ہمارا سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو میں یہاں سے پیسے نکال کر کہاں ڈال رہی ہوں؟ وہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی آخرت میں جو میرا اکاؤنٹ ہے دوسرا، اس میں ڈال رہی ہوں. اور اس میں کس کے لیے ڈال رہی ہوں؟ اپنے فائدے کے لیے ڈال رہی ہوں، ہے نا. اور جہاں اس اکاؤنٹ میں جو بھی ڈالوں گی، اس اکاؤنٹ میں جو بھی میں ڈالوں گی نا، وہ مجھے بڑھ چڑھ کر کے ہی گناہ مجھے دے گا. اس لیے آپ کسی کو بھی دیں، غریب کو دیں، مسکین کو دیں، یا آپ کسی کی مدد میں دے رہے ہیں، یا آپ کسی کا قرضہ اتروانے کے لیے دے رہے ہیں، یا اپنے کسی کزن کی مدد آپ کر رہے ہیں، یا مان لو آپ کا کوئی بھائی ہے، کزن ہے، غریب ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ نے اس کے بچوں کو پڑھا دیا، یا اس کے لیے اس کے خرچے اٹھا لیے، تو کیا آپ نے اس پر احسان کیا؟ نہیں نہیں، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. اس نے اس پر، بلکہ آپ نے تو اپنے پیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیے. آپ کو کئی گنا بڑھ چڑھ کر آپ کو وہ پیسے آپ کو ریٹرن میں ملیں گے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی، جیسے مان لو کیا ہمارے گھر میں میڈ آتی ہے نا، میڈ کی ہیلپ کے لیے صدقہ دے دے، زکوٰۃ دے دے. ایک منٹ. صدقہ دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، یا کچھ بھی دے دیں، تو یہ سوچیں کہ یہ اس کا حق تھا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا. اب اس سے مطلب کوئی امید مت رکھیے کہ وہ میرا زیادہ ایکسٹرا کام کرے گی. نہیں نہیں، آپ اگر ایکسٹرا کام کروا رہی ہو تو اس کو ایکسٹرا پیسے بھی دیجیے. اس ایکسٹرا کام کے اس میں سے یہ مت سوچیے کہ یہ زکوٰۃ میں سے ہو گیا یا یہ صدقے میں سے ہو گیا، اس کی امید مت رکھیے، ورنہ سب زیرو.
सब बैलेंस आपका अब आपका जो है वो सब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, सब आपका नेगेटिव हो गया। तो जब हम ये सोचेंगे कि हमारा एक अकाउंट यहाँ है और एक अकाउंट हमारा वहां है अल्लाह ताला के पास, तो हमारे अंदर कोई लालच नहीं आएगा। ठीक है। और हम दिल खोल कर अल्लाह ताला की राह में खर्च करेंगे। तो देखिए जो जितना खर्च करता है ना, आप देखें कि कुरान में ही आपको आएगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर तुमने 1 रुपया भी खर्च करा तो अल्लाह ताला के पास जाकर वो तुम्हें 70 और 700 और इससे भी कहीं गुना ज्यादा आपको मिलेगा वहां जाकर। आप यहाँ पर खजूर के गुठली भी लगा देंगे ना, तो वो बो देंगे तो अब उससे जितने लोग फायदा उठाएंगे, वो पेड़ उगेगा, उससे जितने लोग फायदा उठाएंगे उतना, यानी अल्लाह ताला के नजदीक वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जैसे कि ओहद पहाड़। जैसे मान लो आपने अल्लाह ताला की राह में एक बछड़ा दे दिया, वो बछड़ा अजर में इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जैसे कि ओहद पहाड़। सुभान अल्लाह। तो दिल खोल कर और बहुत खुशी से, और जितना देंगे ना अल्लाह ताला आपकी कमाई में उतनी बरकत डालेंगे। जितना आप अल्लाह ताला के नाम पर देंगे ना, जितना आप खर्च करेंगे उतना अल्लाह ताला आपकी जिम्मेदारी को उठाएंगे, उतनी अल्लाह ताला आपकी किफालत करेंगे। लेकिन जहां हम तंग दिल हो गए, कंजूस हो गए, वही समझ लीजिए कि सब खत्म। ठीक है। तो ये क्या हो गया, युनफिकून, जो हमने उन्हें दिया वो सब उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है। तो तो जो हमने किया वो उसमें से, तो खर्च हमें कैसे करना है, बिल्कुल मतलब खुशी दिली से खर्च करना है, खुश दिली से। मतलब ऐसे नहीं कि दिल तोड़कर या मुंह बनाकर या बहुत हमारे दिल पे जोर पड़ रहा है, जब हम निकाल कर दे रहे हैं, अपनी मुट्ठी बहुत मुश्किल से खोल रहे हैं, बहुत जोर डालकर, तब वो दिल दुखे से हम दे रहे हैं, नहीं नहीं, वो हमारा फिर नहीं लगाया जाएगा, वो हमारा कोई सदका कोई खैरा किसी चीज में नहीं मिलेगी। वो तो अगर हम दे भी रहे हैं तो वो भी बेकार, जीरो। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, अल्लाह ताला ने ये क्या कहा, अल्लाह ताला ने कि खुशी दिली से, खुश दिली से दो। ठीक है। और जितना दोगे आप उसको कहीं ज्यादा आपको उसको कई गुना आपको बढ़कर रिटर्न में मिलेगा आपको। तो इसलिए कैसे देना है, बहुत खुशी दिली से, तंग दिली से नहीं, खुशी दिली से। तो चलिए एक बार इस आयत को फिर पढ़ लेते हैं। अल्लजीना, वो लोग जो युमिनूना, आमना युमिनू से, युमिनूना ईमान लाए, बिल गैबी, गैब पर। गैब किसे कहते हैं, छुपी हुई बातों पर। वयुकीमूना सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज, युकीमूना और ये क्या है, फेले मुदारे है, अस्सलात नमाज, वमिम्मा, और वो जो रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज़्क दिया, युनफिकून, वो उसमें से खर्च करते हैं, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। ठीक है। चलिए एक बार और मैं आपको करा देती हूँ, मैं इसलिए आपको बार बार कराती हूँ ताकि आपको यही के यही याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना ना पड़े। ठीक है। तो चलिए एक बार और बोल देती हूँ मैं। अल्लजीना, वो लोग जो युमिनूना, ईमान लाए, बिल गैबी, गैब पर, छुपी हुई बातों पर, वयुकिमूना, और वो कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व मिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज़्क दिया, युनफिकून, वो उसमें से खर्च करते हैं, अनफका युनफिकू से। ठीक है। तो वो उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है। चलिए मैं अब दुआ कर देती हूँ। तो आई आपकी कुछ समझ में, थोड़ा बहुत, क्या पता कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आपके आया होगा। चलिए अच्छी बात है।
अल्लाह ताला इसी तरह आपको भी इसी तरह समझाता रहे, और मुझे भी अल्लाह ताला मेरी भी जबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलवाए जो आपके दिल तक पहुंचे, और मेरा पढ़ाया हुआ आपके दिमाग तक पहुंचे, ठीक है। और जो हम अल्लाह ताला सबके जरिए, हमारे सबके जरिए अल्लाह ताला इस कुरान को आम करे, ताकि हर घर में कुरान हो, हर हाथ में कुरान हो, हर दिल में कुरान हो, ठीक है। तो चलिए मैं दुआ कर देती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। समीना व अताना गुफरानका रब्बना व इलैकल मसीर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। चलिए, अब जिसको कुछ पूछना है इससे रिलेटिव तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी और अगर आपको किसी को कुछ और पूछना है तो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।